ठीक है ना। अब मिड ओशन में वो कहेगा भैया मेरे को तो घर जाना, मेरे को काम नहीं करना, प्रोफेशन गया भाड़ में। आज वो जो पैशन है वो उस दिन उस मोमेंट के लिए जीरो हो जाएगा। Good morning everybody. So finally, first of all, thank you so much for coming Sunday को. That too अभी सर ने mention किया Sunday को आना बहुत टफ होता है, मुझे भी बोले मेरे लिए भी बहुत टफ है, but to be very honest, ये passion चाहिए बॉस. What you're getting into is not at all easy, right? ये आप लोग को पता है? You're getting into something very critical. नहीं वो इतना yes deep नहीं आ रहा. यही चाहिए, क्योंकि वो जब तक deep पता नहीं होगा what are you getting into, आपको कुछ समझ नहीं आएगा day and night, and you will be a complaint box on board. Okay, I'll start with my thing. Hi, my name is Anurag Vinayak. I'm from Delhi. Okay, I did my schooling from Mount Carmel School, that is in Delhi itself. And in 2010, I did my pre-C. In 11, I went on board as a first-time cadet. Okay, and I did 3 shifts during my cadetship. 18 months था, जो आज भी 18 months ही चल रहा है. In most of the management companies, like I'm from Anglo Eastern. From day one, I was selected, sponsored by Anglo, then sent to Tolani for my training, and then since then till today, I am with Anglo Eastern. Okay. So in Anglo Eastern, what they do normally, they give you 3 shifts, 6 months each. Okay, and they try to keep you on different fleets so that आप ज़्यादा experience gain करें. I'll make it Hindi English, that is comfortable with everybody, right? Yes, perfect, good. So basically, I did one bulk carrier, then second one was VLOC, right? This VLOC is very large ore carrier. Okay, तो आज की डेट में जो ore carrier है, that lifts around 4 lakh plus वाले वाला fleet. So that was my cadetship का second ship. Being like अरे world's largest bulk carrier, proudly बोलते थे, तब तो रेडियो पे भी बोलते थे. So second was Vale, then third I did a gas carrier, and then I cleared my exams in 2014. I went on board as a third officer first time, and then going down the journey line, I did 2 shifts as third officer, then I was promoted to additional second officer. अब वो rank यहाँ से हटा दिया गया है. पहले there was a rank for additional second officer, or they entered like chief officer star. Okay. So it used to be ACO, and that officially there is no rank like this. This was only because oil majors में क्या होता है, matrix की requirement होती है, मतलब उनको experience बंदे चाहिए शिप पे. तो वो कहते हैं भाई आपके चीफ ऑफिसर में अभी सिर्फ 6 महीना हुआ है, बट वो ACO काउंट करके 12 months हो जाता है. तो इट बिकम्स कमर्शियल एस्पेक्ट है, वो आप धीरे धीरे जब प्रोफेशन में घुसोगे आपको उन डीप समझ आएगा. देन आई वॉज प्रोमोटेड एज सेकेंड ऑफिसर इन 2016, या, एंड देन दिस ईयर आई वॉज प्रोमोटेड एज चीफ ऑफिसर. Okay, so my journey was pretty fine, pretty good. I'll give you little more brief of my own thing. Like I'm from a family जिसमें कोई भी सर्विस में नहीं है. I was the first guy to enter, and trust me, in 2011 or 10 rather I would say, there was no and a big no information what you're getting into 3. Like I'm from Delhi, हमारे यहाँ पे सी नहीं है, हम मुंबई में नहीं रहते कि हमें कहीं ना कहीं से दरिया या जहाज दिख जाएगा. First time I saw a ship was after entering the profession. Okay, it's I would say irony of life. एक ही irony है, दूसरी I was a person during my childhood. I had a super phobia for water. नैनीताल में लेक है, right? वहाँ पे बोटिंग होती है, मतलब and it's like my family had a guest house there. We used to go there कि रेगुलर छुट्टियों में जा रहे हैं. मैं उस बोट पे भी नहीं चढ़ता था. मार्क माई वर्ड्स, में उस बोट पे फोटो खिंचाने के लिए भी नहीं चढ़ता था कि मैं पानी में डूब जाऊंगा. एंड टुडे हियर एम आई. ओके, व्हाट इज द रीजन? यू आर नेवर बोर्न विद एवरीथिंग. इट इज यू आर व्हाट यू मेक योरसेल्फ, एंड फ्रॉम द राइट टाइम यू आर गेटिंग द राइट गाइडेंस. हमारे टाइम कुछ नहीं था. आई जस्ट एंटर द प्रोफेशन. आई हैड माई ओन ग्रिलिंग सेशन. ओके, एंड आई सेड ठीक है यार देखेंगे चलो, एंड आई टुक हाउ इट केम. Okay, and I'm taking how it is coming, and I will take how it will come. अगर ये फॉलो कर सकते हो आप, डेफिनेटली यू आर एट द राइट चेयर, और यहाँ बैठे हो तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा. आई एम नॉट सेइंग क्योंकि मेरे को सर ने इनवाइट किया है, क्योंकि डेफिनेटली बिकॉज सर हैज स्टार्टेड अ लेगेसी जो पहले नहीं थी, हम लोगों ने फेस करी है, सर ने फेस करी है. कोई बताने के लिए भी नहीं होता था. घर पे भी किसी को मर्चेंट नेवी बोल तो आधे लोगों को आज भी नहीं समझ आता मर्चेंट नेवी क्या है. द बिगेस्ट क्वेरी आई गेट कि सर आप फाइटिंग भी करते हो. अरे बॉस नहीं करते, वो इंडियन नेवी है, ये मर्चेंट नेवी है. जो आजकल इतना आप देख रहे हो, आप लोग अवेयर हो रहे हो, तो उसका फ़ायदा उठाओ.
वी वर नॉट अवेयर, ठीक है, थोड़ा सा डिविएट हो गए अवेयरनेस से. कमिंग बैक टू इट, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी कॉमन थिंग. व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी? एनी वन ऑफ यू, बस. I like the profession, and there is too much money in merchant navy, and there is too much hard work and open sky work, and that's अगर इस प्रोफेशन में पैसा नहीं हो, आज मैं पैसा कम कर दूं, आर यू स्टिल ओके विद इट? yes, रीजन? because sir, we will हम सर अलग अलग कंट्रीज़ में घूम सकते हैं और हम वर्ल्ड देख सकते हैं. राइट, परफेक्ट, थैंक यू. थैंक्स. ओके, नाउ कमिंग टू ये सब क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सबको इंटरव्यू में पूछा जाएगा. एवरीबडी विल बी आस्क्ड व्हाई यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, एंड एवरीबडी विल टेल यू व्हाई यू शुड जॉइन मर्चेंट नेवी. ओके, बट आई विल नॉट डू दैट. वो आप सबको पता है, मैं अभी बोलूँगा, आप इतनी बड़ी लिस्ट दे दोगे. ट्रैवल सर, एडवेंचर सर, पैशन सर, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री, एवरीथिंग. बट नाउ आई विल just tell you the reality, what I am here for, why you should not join this profession. Okay, you should not. This is the harsh reality of the profession. ये शायद आपको लोग बताएंगे. Okay, I was given this option. Okay, and I entered this profession only through this way. मेरे को सारा नेगेटिव बता दिया गया. मतलब दिन रात की मेहनत कोशिश करके मेरे को 2.5 घंटे का लेक्चर दिया था कि भाई तू यहाँ नहीं जाएगा. My own father was against कि नहीं जाना. I had a fight with him for 1.5 months कि मेरे को जाना है. तो मैंने कहा नहीं जाना. मैंने कहा मैं तो जाऊंगा. And it was a real tough time कि हाँ लड़ रहे हैं हम, जाना है जाना है जाना है, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, चलता जा रहा है. And trust me, 1 year after when I came back home from Solani, he was the person कि भाई तू यहाँ नहीं रहेगा. This is the change, right? How did this came into my life? Why you should not join this profession? Okay, you will be away from your family. Take it, bare truth. Passion, पैसा, travel, adventure, सब तेल लेने गया. You are not paid on board to travel. Okay. Every day you have 12 hours of your duty. 10 to 12 hours varies from time to time or rank to rank. सीनियर रैंकिंग में आप 24/7 उठे हुए हो. रेस्ट आवर्स है, एवरीथिंग इज देयर. यू आर स्लीपिंग बट योर माइंड कैन नेवर स्लीप. एज अ सीनियर ऑफिसर मैं आज भी सोता हूँ, मेरे लेफ्ट साइड पे मेरा रेडियो ऑन रहता है. अब आदत हो गई है रेडियो ऑन में भी सोने की, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू विल बी कॉल्ड. आप जो ट्रैवल पार्ट देखते हो ना, दैट इज ट्रस्ट मी सिर्फ एक दिन होता है 30 दिन में से, वो भी शायद अगर आपको शोर लीव मिली, एजेंट की गाड़ी आई, या आपका शिप पोर्ट के बिल्कुल, सिटी के बिल्कुल पास है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नॉट गेट टू ट्रैवल. इफ यू वांट टू ट्रैवल, ओके, हाउ आई यूज्ड टू ट्रैवल. आई एम लाइक, आप लोगों ने देखा होगा तब, लाइक फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, तब इंस्टाग्राम भी नहीं था. एंड आई रिग्रेट, अगर मैं वो करता तो शायद मैं मर्चेंट नेवी की जगह ट्रैवल ब्लॉग में घुस चुका होता. क्योंकि आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, मेरे को जहाँ चांस मिलता था. बट कैसे, सबको ये दिखता है आज यहाँ सब बैठे, एवरीबडी वुड्स की यार सर तो घूम रहे हैं, बट सर कैसे घूम रहे हैं. आई डू माई 6 hours ऑफ ड्यूटी, देन आई गेट 6 hours ऑफ टू रिलैक्स. आई गो बाहर घूमने, आते ही बैक टू ड्यूटी, फिर 6 घंटे की शिफ्ट करो, आपकी वॉच हुई 18 घंटे हो चुके हैं. आपका कोई पेंडिंग काम भी रह जाएगा. अगर आप थर्ड ऑफिसर हो तो आपको डिपार्चर क्रू लिस्ट बनानी है, कुछ करना है. आप सेकंड ऑफिसर हो तो आपको पैसेज प्लान रेडी करना है, डिपार्चर चाहिए, डिपार्चर मीटिंग करनी है. कैप्टन आ जाएगा, अरे सेकंड पैसेज प्लान रेडी है, हाँ चल मेरे को ब्रीफ कर दे बाहर तक का. वो जो 6 घंटे सोने के उसमें से 2 घंटे भी हट जाएंगे. यू अगेन यू आर जस्ट लेफ्ट विद 4 hours. यू वर्क फॉर 20 hours ऑन अ स्ट्रेच एंड देन यू गेट 4 hours ऑफ स्लीप, एंड दैट इज नॉट इनफ. किसी को भी वो पूरे 20 hours में से, ठीक है, 14 घंटे नहीं दिखे, वो 6 घंटे का ट्रैवल दिख गया. राइट, बी प्रिपेयर्ड. घूमो, मैं ये नहीं कहता मत घूमो, बट बी प्रिपेयर्ड. इट इज नॉट आपको टाइम, अरे आज तो हम स्पेन पहुंच गए हैं, आज तो हम इटली पहुंच गए, बेटा लिवोर्नो में खड़े हैं, पिज़्ज़ा घूम के आ जा. नहीं, आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा, तभी आप घूमने जाओगे. एंड विद रैंक वो टाइम नहीं मिलेगा. पहला, अगर आप कहते हो ट्रैवल, दैट इज क्रॉस, ठीक है. सेकंड, पैसा.
मनी इज नॉट ओनली एवरीथिंग, येट इट गेट्स यू एवरीथिंग, राइट? अगर आप सोचते हो पैसा कमा के रिच हो जाओगे, डेफिनेटली आप नहीं रिच होगे। पैसे से आप क्या कर सकते हो बॉस? पैसे से आप सिर्फ वो सर्विसेज परचेज कर सकते हो जो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन दे रही है। आज आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन है। आज आप एक ब्रांड पहनोगे, कल आप दूसरे को देखोगे, उस दिन के बाद आप फिर गुच्ची पे भी कूद मारोगे, आप सब कूदते रहोगे जब तक आप अपनी लाइन नहीं बनाओगे। इट इज ऑल, आई वुड से, मेंटल सेटिस्फैक्शन। आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इन टुडेज टाइम इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं भी इसलिए काम कर रहा हूँ, सर भी इसलिए कर रहा हूँ, और आप सब भी इसीलिए पढ़ रहे हैं आज। उसके लिए थ्राइव करो, बट सिर्फ ये मत देखो कि इस प्रोफेशन में पैसा है। हर जगह पैसा है यार आज की डेट में। इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है आप लोग को पता है, ठीक है? अगर आप में से कोई अगर पैसा ही कमाना चाहता है, लेट्स कम टू पैसा, ठीक है? आपको पैसा ही कमाना है, आज के टाइम में आप बाहर जाके झंडे बेच लो। वो अगर 100 रुपये का दे रहा है, आप 50 का दे दो, आप देखना ये 3 दिन में 13, 14, 15 में ही पैसा कमा के घर आ जाओगे। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट। पैसा है बट कॉस्ट बहुत ऊपर है। किस आपको इतनी, भाई हम लोगों को बहुत प्रोफेशन में कभी कभी क्या लगता है कि बहुत सारे इस प्रोफेशन में तो हम हर रोज दिन रात काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत में कहीं और करता तो कुछ और मिल जाता। ये बहुत कॉमन आई वुड से थॉट आता है हम सेलर्स में, बट उसमें आपको अपने आप को समझाना है फिर कि बहुत सारे चोज एंड अपना बेंचमार्क बना लो यार, ये करना है, ये जिस दिन हो गया उस दिन ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखना, चुपचाप सो जाना, ठीक है ना? अगर सोचो सिर्फ इसमें अनगिनत पैसा है, देयर इज इनफाइनाइट sea of money, boss, it is not there. But yes, enough to sustain you and your family, enough to upgrade your life, enough to give comfort to your family what you are aiming for, but at a cost. तो स्टार मार्क होता है ना, निवेश करने से पहले कौन सी पुस्तिका जरूर पढ़े। इट इज जस्ट लाइक दैट। ओके, कमिंग टू ऑल द नेगेटिव्स ऑफ द प्रोफेशन, व्हाई यू शुड नॉट जॉइन। ओके, आई वाज गिवन अ सिनेरियो इन 2010 व्हेन आई वाज being briefed to enter the profession. Okay, just think, I have no concern, I have no intention to hurt anybody sitting here, nor the instructor who gave me this example had any intentions, but now I understand what was his real intentions. He was कि you're on board, your first time cadet, okay, you went on board, Ukrainian Russian masters, you know the trait of Russian Ukrainian, आप लोग को पता है, बेसिकली वो बहुत ब्लंट होते हैं, उनके लिए लेफ्ट और राइट नहीं होता, सिर्फ स्ट्रेट होता है। कोई ब्लैक और वाइट ही होता है, उनमें ग्रे नहीं होता। हम लोगों में सेंटिमेंट्स हैं, हम लोग में ग्रे होता है। हम ब्लैक वाइट में जीते ही नहीं, हम सिर्फ ग्रे में जीते हैं। क्यों? हमारे अंदर सेंटिमेंट्स हैं, हमारी अपब्रिंगिंग वैसी है, ठीक है ना? यू हैव अ रशियन मास्टर ऑन बोर्ड, पार्टी चल रही है, संडे है, बारबेक्यू चल रहा है बढ़िया सा पीछे फूड डेक पे, ठीक है ना? चिकन रोस्ट हो रहा है, पनीर रोस्ट हो रहा है, सब अपनी अपनी बियर पी रहे हैं, चिल मोड चल रहा है। वहाँ पे लोग बीड़ी जला रहे हैं, आप वेट कर रहे हो कब नाचना है, ठीक है ना? उधर से मास्टर आता है, उधर से थर्ड ऑफिसर आता है कि आपको कैप्टन साहब बुला रहे हैं। आप जाते हो, आपकी हवा टाइट होती है, कैप्टन क्यों बुला रहे हैं? कुछ तो पंगा होगा तभी बुलाया, या तो मैंने साउंडिंग नहीं ली, या लॉग बुक में एरर कर दिया, या उसने पेपर वर्क दिया था मैंने किया नहीं। आप उधर जाते हो, कैप्टन सेज कि सॉरी माय डियर फ्रेंड, योर मॉम इज नो मोर, आपकी दुनिया में रुक जाएगी। एम आई राइट? फर्स्ट टाइम कैडेट अभी अभी जांच पे आया है, खुद सेटल नहीं हुआ, और भगवान ने एक ऐसा सा प्लान डाल दिया, घर जाएगा जो उसको जाना है, ठीक है ना? अब मिड ओशन में वो कहेगा भैया मेरे को तो घर जाना है, मेरे को काम नहीं करना, प्रोफेशन गया भाड़ में। आज वो जो पैशन है उस दिन उस मोमेंट के लिए जीरो हो जाएगा। एम आई राइट? और उस दिन आप बोलोगे बॉस कुछ नहीं, बस मुझे घर भेजो, और उधर से योर रशियन मास्टर से फक इट, योर मॉम वाज नो स्पेशल, एवरीबडी मॉम्स गोज, पकड़ बियर, चीयर्स। विल यू होल्ड दैट कैन ऑफ बियर? Why? A very good no, but why? No, पार्टी है, पार्टी पे सब इक्वल होते हैं, सब बराबर है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बड़े हो छोटे हो, पार्टी का मीनिंग यही होता है, वो आइस ब्रेकर होता है बेसिकली। नहीं, आप अभी मैं अलग कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहा हूँ आपको, मैं अभी सेंटिमेंटल प्लेइंग विद इमोशंस की बात कर रहा हूँ। आप रिस्पेक्ट को अलग रखते हैं, व्हाट यू आर सेइंग इज इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट। ओके, बेसिकली नो जो आंसर आया था, ठीक है, दैट्स व्हाट आई सेड, आई कुड प्ले विद योर माइंड सेट।
when you are on board there is you have to accept the harsh reality. ठीक है ना, आपने बोल दिया सर नो, आप कैबिन में गए, रोने पिटने लग गए, मैं ड्यूटी पे भी नहीं जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं यहीं बैठूंगा, आई वुड से दैट इज नो. उस टाइम बियर का कैन पकड़ लो. समझ रहे हो? ही क्वेश्चन मी एंड ट्रस्ट मी, आई सेड यस, मैं पकड़ लूंगा. आप लोग सोचोगे कितना इनह्यूमन है, इसमें दिमागी दिल ही नहीं है. दैट वॉज द नीड ऑफ द मोमेंट. मैं उस टाइम टूट जाऊंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा तो जहाज पे कुछ हो जाएगा. मैं तो गया, मेरे साथ 22 जने और जाएंगे. 22 जने जाएंगे, वो 300-600 मिलियन डॉलर का शिप जाएगा. और अगर मैं तो गया उनके साथ ही, मैं ऊपर जाके बोलने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं इसलिए ये नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज फीलिंग वीक और आई वॉज ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड. सॉरी बॉस, आज तो आप हो, आपने तो 22 जनों के जिनके आई वुड से फादर, ब्रदर, हस्बैंड थे ऑन बोर्ड, आपने तो उनकी फैमिली खराब कर दिया. अब बताओ, पकड़ोगे बियर कैन? दिस इज द प्रोफेशन. हार्श रियलिटी, बट दिस इज द ट्रूथ. घर आओ, यू विल बी द मोस्ट सेंटियस्ट पर्सन आई वुड से. वी सीफेयरर्स आर वेरी सेंटी, वी आर वेरी इमोशनल. क्यों हम ये सब देखते हैं? राइट, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मत आने इस प्रोफेशन में बॉस. आप ऑन बोर्ड आए, आपको सीधा सबको सबके आपको सबसे हार्श एग्जाम्पल देते हैं, झाड़ू लगवाएंगे जी, वॉशरूम साफ करवाएंगे, हार्डली बिग डील यार. वो मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट मी. प्लेइंग विद योर माइंड इज डिफिकल्ट. मेक द राइट चॉइस. आज आपने ले लिया, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप. आज आप इंडिपेंडेंट हो, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बाय गॉड ग्रेस. आप योर पेरेंट्स टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, जैसे तैसे वो कर रहे हैं आपके लिए. 5 years down the line, 10 years down the line, let's take it 10 years, you will be all married, you must have your family, if not family, your loved ones at least, right? Today you're passionate, you want to join this profession, you see yourself staying for 8 and 9 months out at sea, but after 10 years, are you ready for this? Your parents will grow old, your family will be set back, but are you really ready? वो दिवाली भी नहीं मनाएंगे, trust me यार. आपको लगता है मनाएंगे? आपको लगता है वो नहीं मनाएंगे? टेक माई वर्ड, वो नहीं मनाएंगे. आपको दिखाने के लिए मनाएंगे, बट दिल से नहीं मनाएंगे. बट आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ऑन बोर्ड आई सी पीपल, आई ऑल्सो केम थ्रू दैट रूट ओनली. सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सर मेरे को तो ये पता ही नहीं था, मैं तो आता ही नहीं. हर रोज सुबह उठ के बैठ के कंप्लेन बॉक्स, सर मेरे को तो ये पता ही नहीं था, ये प्रोफेशन में ऐसे भी होता है, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस, दिस इज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड. ये सबसे कॉमन क्वेश्चन. ट्रस्ट में अगर ये क्वेश्चन सेट इन हो गया, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर ओन लाइफ. आप रिग्रेट के थक के सोओगे, रिग्रेट से उठोगे. क्या कर रहे हो? द बिगेस्ट क्वेश्चन इज क्या कर रहे हो? प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट. पढ़ाई होगी, पढ़ाई हर जगह इंपॉर्टेंट है, बट बी प्रिपेयर्ड मेंटली एंड इमोशनली. वो सबसे स्ट्रांग है. आज के डेट में सुसाइड केस, हम सर पहले हमारे टाइम में वो सुसाइड प्रिवेंशन गाइड भी नहीं आती थी, हमें मेंटल और फिजिकल हरासमेंट में कुछ भी नहीं सिखाते थे. और आज आप बुक्स देखो, आप अपना स्मोक रूम, रिक्रिएशन रूम में जाओगे, कम से कम 18-20 इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ, पूरा बुक शेल्फ लगा हुआ है, उसमें यही बुक्स हैं. हमने एक्सपीरियंस से सीखा, आई वुड से सफ़र करके सीखा. आपके लिए वही सफ़र किताब में लिख दिया गया. कर लो फॉलो, उसको पढ़ो. हम वीडियो क्या देखते हैं, हमें को बहुत लोग बोलते हैं कि सर वीलॉग क्यों नहीं शुरू कर रहे. मैं वीलॉग इसलिए नहीं शुरू कर रहा, मैं नहीं दिखाना चाहता कि ये जहाज पे देखो कितना अच्छा इंजन रूम है, ये ब्रिज तो बहुत अच्छा है, डे ऑफ चीफ ऑफिसर ऑन बोर्ड. नहीं दिखाना यार, वो आपने देख लिया है. नहीं देखा तो अब देख लोगे, एक्सेप्ट भी कर लोगे. डे रूम, बेडरूम मिलेगा, बढ़िया सा वॉशरूम मिलेगा, बाथटब के साथ आपको स्टीवर्ड मिलेगा, चाहे उसको नहीं सर्व करना फिर भी करेगा, उसकी ड्यूटी है. और आपको कैप्टन से नहीं बात करनी, बट आपको करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है. वो सब दिखाएंगे, कोई रियलिटी नहीं बताएगा. वाई आई स्टार्टेड दिस सोशल मीडिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जो सबसे बड़ा मिथ चल रहा है कि सर मर्चेंट नेवी में आना है, साइंस तो है नहीं, ऑफिसर तो बन नहीं सकते. सब कह रहे हैं जीपी रेटिंग बन के बन जाओ. बॉस द रियलिटी इज, अगर आप जीपी रेटिंग बन के जाते हो, शायद आपकी प्रोबेबिलिटी गिर जाती है 10,000 में से 1.
मैं 100 भी नहीं बोलता, 1000 भी नहीं बोलता, 10,000 भी अपनी डाउट पे। आज की डेट में आप जीपी रेटिंग से आओगे, 36 मंथ करोगे, सबसे पहले जो आपने 18 महीने करने थे उसमें 2.5 से 3 साल लगते हैं। 36 करने में आपको 9 महीने करने पड़ते हैं, आपके 5 साल वेस्ट होते हैं। फिर आप एनसीबी निकालते हो, फिर आप एग्जाम्स देते हो, फिर आप कंपनी को अप्रोच करते हो, बोलते क्या है क्रूज से आए हो। आज के डेट में मार्केट में इन्फ्लेशन इतनी है यार, क्रेडिट्स इतने सारे हैं। एनी डे इफ दे हैव अ प्रॉपर साइंस बैकग्राउंड, प्रॉपर डीएनएस, लेफ्टिनेंट कर्नल निकल रहा है या आर्मी का बिल्कुल लोअर से निकल रहा है, सूबेदार या बिल्कुल लोअर जनरल एंट्री से निकल रहा है, डेफिनेटली वो एनडीए से उठाएगा ना बंदा, वो समझो। और आप बोलते हो नहीं यार मर्चेंट नेवी वाले बोल रहे हैं यार ये सही होगा, बहुत सही नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं लेगा, सब गाइड करेंगे, गारंटी आपकी है। माई बेसिक एम इज वाई यू शुड नॉट ज्वाइन इज दैट गाइज, सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है लाइफ में, इट इज़ ऑल योर माइंड सेट। अगर आप आज नेगेटिव हो, आप पूरे जीवन में आपको नेगेटिव देखोगे, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली कहानी हो जाती है। आज आप पॉजिटिव हो, ठीक है, बी पैशनेट अबाउट इट, उसको एक्सेप्ट करो, नेगेटिव सारे ले लो यार जो मिले ना कि। एंड आप सबके लिए जस्ट अ सजेशन, आज मैं मिला, कोई भी मिले ना, किसी से मत पूछो सर मर्चेंट नेवी कैसा है, सीधा ये पूछो कि सर मेरे को मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन करना, कन्विंस करके दिखाओ, तब निकलेगा सच। कभी किसी को क्वेश्चन किया कि सर मुझे ज्वाइन नहीं करना, क्यों? आपको लगेगा मेरे पास आओगे सर ज्वाइन नहीं, मैं कहूँगा भाई आ क्यों रहे फिर मेरे पास? डेफिनेटली नो, आई वॉन्ट यू टू कम एंड से कि सर मेरे को ज्वाइन नहीं करना, कन्विंस तो करो। तब मैं यूट्यूब की भाषा नहीं बोलूँगा, जो सच है वो बताऊँगा। और उसको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, ट्रस्ट मी दिस प्रोफेशन विल मेक यू नॉट समथिंग, एवरीथिंग। अब ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी? नेगेटिव सारे ले लोगे? क्या बात है सर, परफेक्ट। आप ये सब एक्सेप्ट कर लो, दैट इज प्रीटी गुड इनफ, ठीक है। कमिंग टू द प्रोफेशन, आई जस्ट, बहुत लंबा हो गया, जस्ट आई कट इट इन 2 minutes मोर। सी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेगेटिव थिंग, वेलकम। पॉजिटिव आप हमेशा कर लोगे, ठीक है। जस्ट आई जस्ट गो थ्रू फ्यू टिप्स फ्रॉम माई साइड फॉर यू। जब आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, ठीक है, मेक योर नोट्स, रीड योर टेक्स्ट बुक प्रीटी डीप वेल। बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं, बट ढंग से पढ़ो। सुब्रमण्यम की इतनी सी बुक आती है, बहुत छोटी है, बहुत ढंग से पढ़ो, ठीक है। उसको कॉलेज लाइफ मत समझना, प्लीज़ मत समझना। आप देखोगे कि आपके बैचमेट्स जा रहे हैं, डीयू जा रहे हैं, दूसरे यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, प्लीज़ मत कंपेयर करना, ओके। उस दिन का स्ट्रगल है, टेक माई वर्ड्स, आप 5 साल बाद अपने आप को अप्रिशिएट करोगे कि बहुत अच्छा किया, नहीं किया, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो, मार्क योर वर्ड्स, डिसिप्लिन सीख लेना लाइफ में। यहाँ नहीं है डिसिप्लिन, हमारे घरों में नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है, प्लीज़ वहाँ से सीख लेना और कुछ लेके आना। और अपने घर में, दुनिया नहीं बदलनी यार, अपना घर बदल लेना। उनको छोटा सा एम्पावरमेंट के लिए कि भैया ये आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए क्योंकि मैंने किया, मुझे अच्छा लगा। ट्रस्ट मी, आप उनके विजन हो, आप उनके ही मार्गदर्शक हो, चाहे सबसे छोटे हो, वो सुन लेंगे आपकी, ट्रस्ट माई वर्ड्स। जब शिप पे आ गए पहली बारी, सबसे पहली चीज़, कुछ भी करने से पहले पूछो, ठीक है। स्मार्ट मर्चेंट नेवी में आईटीएंस नहीं चाहिए बॉस, सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए, उतना है बहुत है। टेक्निकल मैनुअल्स पढ़ो, कुछ नहीं समझ आ रहा सीनियर से पूछो, कैडेटशिप का मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। इट शुड बी लाइक आपको पता है फिर भी पूछ लो, मेरा तरीका अलग होएगा, सर का अलग होएगा, तीसरे बंदे का अलग होएगा, सब कुछ सुन लो, उसमें से फिल्टर कर लो कि क्या सही है। हमने भी ये किया था। बी असर्टिव, जो आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है शिप पे। इतना एक्सपोजर मिल गया है कि लोग अब वो वैल्यू समझ गए हैं, वो बोल जाते हैं कि भैया मैं कैडेट हूँ और मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है, आई हैव टू लर्न, आई एम हेयर ओनली टू लर्न। वो सोचते हैं नहीं मैं कैडेट नहीं, मैं ऑफिसर हूँ, मेरे को स्टाइपेंड नहीं, मेरे को सैलरी मिल रही है, अब मैं लड़ूंगा। लड़ लो यार, आप वो 18 महीने काट लोगे, ट्रस्ट मी आफ्टर 80 मंथ्स आप पूछने लायक नहीं बचोगे। वो मत होने देना अपने साथ, जितना मैक्सिमम सीखते तो सीख लो। बी असर्टिव, आई एम नॉट सेइंग कीप क्वाइट, हर चीज़ लेते रहो, नहीं, गलत मत होने देना, बट बी असर्टिव। असर्टिव का मीनिंग क्या है? आप अपना पॉइंट रख रहे हो बट दूसरे की हायरार्की, उसके रैंक की रिस्पेक्ट रखे कि सर मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं, ऐसा होएगा तो बेटर नहीं होएगा, दैट्स इट। ये नहीं कि सर ये ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं करना, नहीं, डोंट डू दिस। आप एक स्टेप बढ़ो, आपके सीनियर 10 स्टेप बढ़ेंगे, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन। बहुत सच्चे लोग हैं बट सच्चे दिल से जाना। आप
इंस्टीट्यूट भी ऐसे हो, नाम ही ये पकड़ लो, बाकी सब छोड़ो. बिलीव इन गॉड, ट्रस्ट मी, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. एंड फॉर you three also, there is, I would say the profession is super safe, and I'm proud, I'm really happy you have taken this call, this decision. C's are not for men, not for women, it is for everybody. Just prove yourself. Gender equality हमारे इंडिया में था, आज की डेट में अब you know इस अकेडमी से लोग उठ के आ रहे हैं तो ऑप्शन मिल रहा है. पहले माइंडसेट बहुत अलग था, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है. एक्सेप्ट करो एंड एवरीबडी इज इक्वल, एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी मच बेटर देन इवन मी. वाई यू हैव मैनेजमेंट स्किल्स जो घर पे यूज होती है. घर में आदमी पैसा ही कमाने के लिए क्यों होता है, घर औरत ही क्यों चलाती है? क्योंकि ये इनहेरिटेड भगवान के दिए हुए स्किल्स हैं. तो अगर वो प्रोफेशन में लग जाएंगे तो इट विल बी अ परफेक्ट कॉम्बो. सो ऑल द बेस्ट फॉर यू टू.